तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 थी इंग्लिश मीडियम। अभी क्या है, देखो जो रिड्यूस सिलेबस था ना, उसमें कुछ एक आध एक्सरसाइज अपन छोड़ दिए थे, लेकिन एमपी बोर्ड का जो गाइडलाइन आया थी तो उसमें सबको कोई भी कोर्स में छूट नहीं दी है। तो ये चैप्टर जो देखा कि चैप्टर 3 में आपके वन एक्सरसाइज छूटा हुआ था, वो था एक्सरसाइज 3.4, है ना, मैट्रिक्स का था। वो आज उसको अपने कंप्लीट करना है और वो है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये जो छूटा हुआ था इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स with same order m such that AB is equal to BA is equal to I. Then A is called the inverse. A is called the inverse of A, and also it is denoted by E equal to A inverse or A inverse. So this is the definition of invertible matrix, है ना। So let A and B are two matrices with same order such that A is equal to B is equal to I. Then B is called the inverse of A. Okay. Now taking example, let A is equal to, for example, let A is equal to 2 3 1 2. B is equal to 2 minus 3 minus 1 2. Then we will show that these given matrix will represent an invertible matrix. So now firstly we find product of A 2 3 1 into 2 minus 3 minus 1 2. This is equal to 2 2 is 4 minus 3 minus 6 plus 6 2 1 is 2 minus 2 minus 3 plus 4. This will equal to 1 0 0 equal to I. So product of AB is equal to I. Similarly, we can find product of BA. Product of B into A is equal to B 2 minus 3 minus 1 2 into A 2 3 1 2 is equal to 2 2 is 4 minus 3 2 3 is 6 minus 6 minus 2 plus 2 or minus 3 plus 4. All this is also 1 0 0. So this is also I. So we have AB is equal to BA is equal to I. So we have AB is equal to BA is equal to I. Therefore, B is the inverse of A, or A is equal to B. So this is the example and definition of invertible matrix, and therefore A is said to be invertible matrix. Now the most important theorem of this exercise is to prove that if A and B are, if A, B are invertible
if A and B are invertible matrix, then if same order, then prove that AB inverse is equal to B inverse into A inverse. So for this देखो यहाँ पर प्रूफ करने के लिए नाउ हियर वी हैव टू प्रॉपर्टीज A inverse is equal to A inverse into A is equal to I and A inverse into I is equal to A inverse. So for the यहाँ पर A into A inverse is equal to I. So putting A is equal to AB here, A is equal to AB. So you have AB into AB inverse is equal to I. Multiply, re-multiply both the side by A inverse. A inverse AB, AB inverse is equal to A inverse. But we know that A inverse into I is equal to A inverse. So by associative properties, A inverse को अपन A inverse के साथ ये कंबाइन कर दिया into B into A B inverse और A inverse I में किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम सेट आ जाएगा, सेम मैट्रिक्स रहेगा इनवर्स. But A inverse into A is equal to I. So I into B, A B inverse is equal to A inverse. अब देखो किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम आइडेंटिटीज मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगा. ओके, तो ये B into A B inverse is equal to A inverse. Again multiplication both the side by B inverse. So B inverse into B, A B inverse is equal to B inverse into A inverse. Multiplication by B inverse on both the side, both the so A into B inverse. Okay, so we have B inverse into B is equal to I. So I into A B inverse is equal to B inverse into A inverse. But I into A B inverse is equal to A B inverse is equal to B inverse A inverse. Hence, so this is the most important question from this part, this exercise. सबसे ज़्यादा जरूरी है इसमें जो क्वेश्चंस है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, है ना, बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. तो अब अपन नाउ इन एक्सरसाइज 3.4 इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, find the A inverse by elementary transformation method. A equal to 1 minus 1 2 3. तो अपन इसके पहले देखे A इनवर्स पढ़ चुके हैं ना.
फैक्टर इसमें डिटरमिनेंट्स मेथड में फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, बट ये जो इनवर्स है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से फाइंड करना है, ये आपकी क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो अब सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखो ये जो मैट्रिक्स है दिस कैन बी रिटन एज A इक्वल टू A I। आई आपको लेफ्ट साइड में जब भी रहेगा तो हम इसको यहाँ पर करेंगे रो ऑपरेशन, यहाँ पर हम रो ऑपरेशन ज़्यादा आपको रो ऑपरेशन ही आसान लगता है बच्चों को, ठीक है। तो अब देखो रो ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, ये कंडीशन भैया A इक्वल टू करें, सबसे फर्स्ट दी यू कैन राइट A इक्वल टू I into A, put in the values of A and I, A is equal to 1 minus 1 2 3 and I is equal to 1 0 0 1 into A। तो A इनवर्स फाइंड कैसे होगा, बहुत ही आसान है। देखो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है, A इनवर्स into A is equal to I। Now you have A inverse into A is equal to I, means R A into A inverse is equal to I, okay। तो A into A inverse is equal to I, ये देखो बहुत ही आसान समझो इसको, A into A inverse is equal to I means हम ये जो नंबर दिया है हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे, जैसे आइडेंटिटी बनेगा यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगा वो आपका इनवर्स बनेगा, ठीक है। यानी देखो यहाँ पर आइडेंटिटी मीन्स क्या, जैसे 1 है ना यहाँ 1 बनाना है, ये 0 है तो इसको 0 बना दो, फिर ये 0 है तो ये 0 बना दो, ये 3 है तो इसको 1 बना दो, ये अपने आप आइडेंटिटी बन जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास में दिया है 1 तो अपने मिल गया, तो पहले तो अपने 1 बनाना है, 1 तो मिल गया, पहला स्टेप क्लियर। अब सेकेंड देखो ये 0, तो दिमाग लगा इसको 0 कैसे बना सकते हैं अपन, तो यहाँ हम क्या करेंगे रो ऑपरेशन, दिस इज R1 एंड दिस इज R2, तो ये रो ऑपरेशन, ठीक है। कैसे इसको बनाना, मैं इसमें ऑपरेट करता हूँ, ऑपरेटिंग R2 माइनस 2 R1, ओके। मतलब 2 से R1 में तुम देखो पहले मल्टीप्लाई करो, R1 का 1 माइनस, ओके, मल्टीप्लाई 2 2 1 2 माइनस 2, ओके। सेकेंड रो इज 2 3। अब क्या ऑपरेशन क्या है, R2 माइनस 2 R1, यानी दिस इज R1 दिस इज R2, तो R2 माइनस 2 R1, सो दिस विल बी इक्वल टू, अब ऑपरेशन किस में हो रहा है R2 में ना, तो पहले वाले वैल्यू तो अपने आप लिख दो, इस दोनों बोथ साइड में, पहले वैल्यू कुछ होना नहीं है, अपन फर्स्ट को तो ऐसे लिख देंगे, ये हो गया। अब देखो R2 माइनस R1, 2 माइनस 2 0 मिल गया ना, ये भी मिल गया आपको। 3 माइनस 2 यानी 3 माइनस 2 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, तो ये इक्वल टू 5, ओके। चलो यहाँ पर भी देखो, तो यहाँ पर आपका है, यहाँ पर ये R1 0, ओके, 2 R1 मतलब 2 1 2 0, जो ऑपरेशन लेफ्ट साइड लगेगा सेम ऑपरेशन राइट साइड भी लगेगा, ठीक है ना। तो ये R2 माइनस 2 R1 यहाँ भी यूज होगा। अब देखो 2 माइनस 1 R2 2 R1 2 R1, ये 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 2 0 0 1, तो R2 माइनस R1 0 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 0 1, ओके। तो ये तो मिला। अब यहाँ पर अपने यहाँ पर क्या 1 बनाना है, तो सबसे पहले देखो 1 है ना, बहुत ही आसान है। 1 अपन कैसे बना सकते हैं, तो टेकिंग R2 1 ऑफ 5 1 अपॉन 5 से आप 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 0 अपॉन 5 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 0 माइनस 2 अपॉन 5 1 अपॉन 5 तो देखो अब ये तो भाई हो गया 0 1 माइनस का, और ये आपका हो गया 0 1, ये आ गया भाई 0 माइनस 2 और 1 5, तो भाई ये तो अपने पास काम हो गया, ओके। अब भाई ये 0 बन जाए,
ठीक है ना। तो अब ये आसानी से देखो 0 बनेगा, ऑपरेटिंग R1 में R1 प्लस R2, तो 1 प्लस 0 1, -1 प्लस 0 0 0। ओके इधर देखो, ये तो आई मिल गया ना अपने को, देखो दिस इज आई। अब 1 प्लस 2 यानी 1 माइनस 2 1 5, 0 प्लस 1 अपॉन 5, जिसमें ऑपरेशन नहीं होगा उसकी वैल्यू को कुछ करना ही नहीं, ठीक है। तो वापस आप अपने पास क्या आ गया, अपने पास क्या है 1 0 0 1 इक्वल टू कितना है 3 अपॉन 5 1 अपॉन 5 2 अपॉन 5 1 अपॉन इनटू ये। ओके, तो भाई देखो ये जैसे आप क्या बोलो, जैसे आइडेंटिटी मिलेगा दिस इज योर आंसर। ओके, तो यहाँ पर ये क्या आई, तो ये क्या होगा A इनवर्स इनटू A इनवर्स इक्वल टू क्या दिस, सो योर आंसर इज दिस। सो A इनवर्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 1 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5 1 अपॉन, दिस इज योर आंसर। तो दिस इज द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, बहुत ही अच्छा है, इम्पॉर्टेंट भी है, और किसी डाउट होगा पूछ सकते हैं, आप लोग वीडियो देखें, ठीक है, और हर एक लाइन को स्टडी करें, अच्छे से देखें। थैंक यू।